फील्ड कर लिया और रन बनने की किसी भी संभावना को खत्म कर दिया। ये ओवर अच्छा जा रहा है आंध्र प्रदेश के लिए। सुदर्शन ने कुल मिलाकर 6 रन दिए और अभी एक ही गेंद बाकी है। क्या इस ओवर को वो ठीक से समाप्त कर पाएंगे? लेकिन ये ऑन साइड में खेला, 1 रन मिलेगा केवल। बढ़िया ओवर सुदर्शन द्वारा। 9 ओवर्स के बाद 117 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मुंबई। Madison, Toro! Can Spurs yet again pull off a stunner in this unmatched rivalry of London derby, or will Chelsea continue their march towards the top? Watch Premier League Tottenham Hotspur versus Chelsea 8th December live. Enjoy the action in Bengali and Malayalam on Star Sports 3 with Blue Button option. इकतीस गेंदों में 66 रन की भागीदारी हो चुकी है। दूधिया रोशनी के प्रकाश में बहुत ही रोमांचकारी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। श्रेयस अय्यर 18 पर खेल रहे हैं, रहाणे 64 रन पर खेल रहे हैं और शशिकांत को फिर से लाया गया। पहला ओवर उनका महंगा साबित हुआ था, 17 रन दिए थे उन्होंने और राजू के स्थान पर वो आए हैं। Bowling shot once again straight to the fielder there, Ricky Bowie at point. It's a slight fumble and immediately off in a flash there. Ajinkya Rahane picking up a single as well. Still have a lot of batting left. Mumbai, the likes of Suryakumar Yadav, Shivam Dube played really well in the last game against Services. Yet to come. Number 10, Shardul Thakur. So they have a lot of depth in the batting. That's in the air. Didn't get a hold of that, but still enough to clear the ropes there. Just thought he didn't middle it, but enough to clear the ropes. That's Shreyas Iyer for you. है बिल्कुल, टाइमिंग उतना बढ़िया तो नहीं था। ये देखिए काफी नीचे, एक हाथ भी छूट गया था। आप देख सकते हैं जब स्ट्रोक लगाया था ना, संतुलन शरीर का भी बिगड़ गया था। लेकिन बावजूद इसके बैट की क्वालिटी आजकल इतनी अच्छी हो गई है कि टकराई और सीधी बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। तो श्रेयस अय्यर 24 रन पर पहुंच गए। रहाणे 65 रन पर खेल रहे हैं और 124 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुंबई बहुत तेजी से लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है और ओवर पिच और ड्राइव किया ऑफ साइड में, स्वीपर कवर मौजूद, 1 रन। You see on this surface when the Seabirds have dropped the ball short, anything short, the batsmen really capitalize. Saw with K.S. Bharat, saw with Ricky Bowie when they were batting for Andhra, saw with Rahane and Prithvi Shaw, the way they have capitalized the short pitch deliveries. It's such a good surface because it's a red soil surface. The bounce has been really good, very true bounce on the surface. Standing deep into the crease there, Ajinkya Rahane, 65. Taken on the full, didn't get hold of that one. He just settled for a single here. ये भागीदारी की तरफ देखें तो ये एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर छक्का मारा था और शॉर्ट पिच मिली तो बैकफुट पर जाकर बढ़िया पुल शॉट लगाए और पुल शॉट्स में तो बहुत ही महारत हासिल है। और ये भागीदारी में श्रेयस और रहाणे ने 75 नॉट आउट की भागीदारी गजब की। कवर की तरफ फिर से चौका और ये बॉल इस बार ऑफ स्टंप के बाद ही खुद ही अंदर की तरफ खींच लिया श्रेयस अय्यर ने। ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, भीतरी किनारा लगा और बोल्ड हो गए और जिस विकेट की तलाश थी बहुत देर तक आंध्र प्रदेश को, आखिर वो विकेट मिला। श्रेयस अय्यर आउट होकर वापस जाएंगे पवेलियन में। दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया बॉलर का, बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी और देख रहे हैं अभी भी, ये देखें किस तरह से बॉलिंग की। Yeah, the line was also line of Ostrom, didn't move there, trying to work on the onside, inside edge, and Sasikant getting the important wicket. Still waiting there, just checking on the no ball at the moment, the umpires. You want to be sure regarding the no ball, that's the reason he's just waiting there. Shreyas Iyer, let's have a look at that. The first landing now, that's going to be important here. Yeah, absolutely fine, way inside, no issues with that. And that means Shreyas Iyer will have to go back. He's looking good, got the start, Shreyas Iyer.
And going back, Shreyas Iyer, the skipper of Mumbai. And he's out for 25 of 11 deliveries. Mumbai 126 for 2. कुछ कठिन गेंदों को छोड़ दिया जाता है। टफ गेंदबाज हो या गेंद, उसे फोड़ दिया जाता है। ऋषभ पंत शानदार टाइमिंग के साथ टफेस्ट राइवलरी में ऋषभ पंती तो बनती है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया दूसरा टेस्ट 6 दिसंबर सुबह 8 बजे। सूर्य कुमार यादव अब आए हैं मैदान पर। जैसे ही आए दर्शकों में रोमांच भर आया। 277 पारियां, 7,813 रन, T20 करियर की बात कर रहे हैं हम। 153 का स्ट्राइक रेट, 54 अर्धशतक और 6 शतक, सर्वश्रेष्ठ 117। कहते हैं कि दुनिया में डी विलियर्स के बाद 360 डिग्री प्लेयर कोई है तो वो सूर्य कुमार यादव। Absolutely. And just see those stats as well. Amazing stats from Surya Kumar Yadav. The strike rate 153, 600s, 54 50s. Even the last game played really well. The partnership with Shivam Dube against services was really important for Mumbai. Straight away off the mark, Surya Kumar with that single. Henna was done for Mumbai, 127 for 2. मुंबई ने अच्छी शुरुआत कर ली है। 10 ओवर्स में 127 रन बना लिए, लेकिन 2 विकेट खो दिए हैं। जो 2 विकेट गिरे, पृथ्वी शॉ 34 रन पर आउट हुए, श्रेयस अय्यर 25 रन पर आउट हुए। रहाणे किला लड़ा रहे हैं, 66 रन पर नॉट आउट हैं। 33 गेंदों पर 66 रन बनाए और सूर्य कुमार यादव अभी अभी आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही मुंबई का पलड़ा भारी दिख रहा हो, लेकिन आंध्र प्रदेश का संघर्ष अभी भी जारी है। और कमेंट्री बॉक्स में ऐसी स्थिति में स्वागत है मानविंदर बिस्ला आपका। नमस्कार मानविंदर। नमस्कार सर। और देखिए, मुंबई को 10 ओवर में 127 बना दिए, लेकिन अभी भी 103 रन की जरूरत है विनय सूर्य कुमार यादव के सामने। और इनको भी अनुभव इसी तरीके से आएगा ना, जब इस तरीके के बल्लेबाजों को गेंदबाजी करेंगे, उनके खिलाफ गेंदबाजी करेंगे। ये बड़ी विकेट थी जी, शशिकांत ने दिलाई है। ऑस्ट्रम के थोड़ा भार था, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और सीधा स्टंप्स पे लगती हुई जब। दोस्तों क्या लगता है कौन इस मैच में जीत सकता है? सूर्य कुमार यादव ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि जबरदस्त ऑलराउंडर भी उस विकेट की इस समय भारत के लिए है। पावर हिटर, माफ कीजिएगा। सूर्य कुमार यादव के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी रहेंगी मुंबई की टीम बढ़िया तरीके से करते हुए जितवाने में। देखते हैं किस तरह से इनकी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगा, चाहे बैक फुट पर हो या फ्रंट फुट पर। सबसे बड़ी बात कि गैप्स में खेल रहे हैं। वो एक बड़े खिलाड़ी की निशानी यही होती है कि ताकत का सही इस्तेमाल और उसका पूरा प्रतिफल तभी मिलता है जब आप गैप्स में खेल सकते हैं, अन्यथा ताकत बेकार जाती है। ये ऑफ साइड में खेला और यहाँ पर मिसफील्ड हुआ थोड़ा सा। 1 ही रन बनेगा, उसका कोई फायदा नहीं। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर है, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं अभी सूर्य कुमार यादव। अभी अभी आए हैं, यहाँ परिस्थिति को समझेंगे, गेंद की उछाल और रफ्तार का जायजा लेंगे और फिर हाथ खोलने की कोशिश करेंगे। ये बॉलर के ठीक ऊपर से उठाया सुंदरता के साथ, लेकिन बाउंड्री लाइन पर फील्डर है, केवल 1 ही रन बनाएगा। पहली 4 गेंदों पे तो शांत रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को विनय ने। और जो पहला ओवर करने आए थे, हम इनकी इकोनॉमी की बात भी कर रहे थे। इस सीजन में 6 से कम की रही है। आज इनके सामने मुंबई के बल्लेबाज, हाईवे जैसी वो पिच जहां पे गेंदबाजी करना काफी मुश्किल रहा है सभी गेंदबाजों के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो विनय के लिए रहा है, मुंबई की गेंदबाजों के लिए भी रहा था मुश्किल। ऑन साइड में फ्लिक करके खेला, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर
2 रन के लिए पहले जाना चाह रहे थे, फिर 1 ही रन लिया। 55 गेंदें, 98 रन चाहिए मुंबई को नॉकआउट्स में क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आज मुकाबला जीतेंगे ना, इस ग्रुप के टॉप पे भी आ जाएंगे। लेकिन अभी भी काफी संघर्ष उन्हें करना पड़ेगा। ये ऑन साइड में खेला, यहां पर 2 रन लेने की कोशिश करेंगे। पहला रन तेजी के साथ, लेकिन 1 ही रन लिया। जोखिम लेना नहीं चाहते। अभी ओवर की समाप्ति, 133 रन 2 विकेट के नुकसान पर। Women versus England women, 24th November to 18th December, live on Jio Cinema. अब तक की कहानी इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी की, टॉस जीता था मुंबई ने। आंध्र प्रदेश ने 229 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। 93 रन भरत ने बनाए, भुई ने 68 और हैबार ने 52। जवाब दे रहा है मुंबई। 133 रन बना चुका है 11 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर। 69 रन पर नॉट आउट है रहाणे। पृथ्वी शाह ने 34 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने 25 रन बनाए और सूर्य कुमार यादव आए हैं। 54 गेंदों पर 97 रनों की जरूरत है। स्टीफन ये बैकफुट पर गए और ऑफ साइड में उठाकर मारा है खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 4 रन देखकर बिल्कुल गैप में खेल रहे हैं। क्या बढ़िया स्ट्रोक है रहाणे का, जितनी प्रशंसा की जाए कम। और एक बार फिर से वो पहली गेंद पे वो बड़ी हिट लगा दी है और दबाव बना दिया है गेंदबाज के ऊपर। और जो रिक्वायर्ड रन रेट है ना, वो 10.53 की है। और जो पहली गेंद पे चौका लग जाए, कम से कम 9 बनने चाहिए। उससे ज्यादा भी बनेंगे, लेकिन कम से कम जिस तरीके के दोनों बल्लेबाज है ना, 9 तो बनाएंगे ही। ये काफी शॉर्ट पिच, बाउंसर और तुरंत ही अंपायर ने नो बॉल, ये वाइड बॉल का इशारा कर दिया। सिर के ऊपर से निकल गई, एक वाइड, यानी अब गेंद भी नहीं गिनी जाएगी और 1 रन भी मिल गया। बहुत छोटा फेंक दिया यहाँ पे स्टीफन ने, अपने पाँव में ही फेंक दिया था ये गेंद। और कई बार लोग गेंदबाज को लगता है ना, पिच इतनी सही है बल्लेबाजी करने के लिए, अगर मैंने थोड़ा सा भी बाउंसर डालने की कोशिश करी लेकिन वो लेंथ हल्का सा आगे हो गया ना, तो गेंद बल्लेबाज के लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। और ये ऑफ साइड में खेला है, फिर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है और फिर से वही परिणाम, 4 रन। क्या बढ़िया स्ट्रोक है, ताक कर खेल रहे हैं। ये कैरम बोर्ड पर खेल रहे हैं या इतने बड़े ग्राउंड पर खेल रहे हैं? गैप्स को इतनी आसानी से ढूंढ रहे हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं जी यहाँ पे अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए। और जैसे कि अभी आपने कहा ना कि गैप्स ढूंढने में इतने सक्षम हैं, और वो काम इस पूरी पारी में ही बहुत बढ़िया तरीके से किया है। 77 पे पहुंच गए हैं 38 गेंदों में, 4 छक्के 8 चौके उस पारी में। ये शॉट खेलते हुए नहीं देखते आप अजिंक्य को, ये शॉट कुछ नया लेके आए हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी रन बनाए हो देखिए बिल्कुल सीधे बल्ले से ज्यादा बनाते हैं रन ये। बच गए यहाँ पर, ये अगर छोड़ देते तो शायद ये निश्चित रूप से वाइड हो जाती। लेकिन ये जो उन्होंने कहा ना कि जिस तरह से रिवर्स शॉट मारने की कोशिश की, स्कूप करके मारने की कोशिश की थी, तो वो पूरी तरह से मिस कर गए। एक बार कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ था जब सिक्सर मार दिया था उन्होंने इसी तरह से, उसी से शायद उत्साहित हैं। 77 रन पर खेल रहे हैं। इस ओवर में अब तक 9 रन बन चुके हैं। और ये ऑफ साइड में खेला, फिर एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा कवर का फील्डर होशियार है, 1 ही रन मिलेगा और 10 रन इस ओवर में आ गए। आप कह रहे थे कम से कम 9 रन बनेंगे, 4 गेंदों पर 10 रन बन गए। और देखिए अगर पहली 2 गेंदों पे एक बड़ी हिट लग जाती है ना, फिर वहां से 9-10 रन तो रुकते ही नहीं है। और अभी भी 2 गेंदें बची हुई हैं, अगर उन 2 गेंदों पे आप 2 रन भी ले लेते तो 12 रन का ओवर हो गया। और आपको चाहिए कितने? 10.44। जितने रन आपको चाहिए उससे तो बेहतर ही खेल रहे हैं।
और अच्छी सोच भी है अजिंक्य रहाणे की ना, कि सामने जानते सूर्य कुमार यादव अभी भी क्रीज पे आए हैं, ज़्यादा गेंदें खेली नहीं है, वो जो तेजी से रन बना रहे हैं ना उसकी जिम्मेवारी अजिंक्य रहाणे ले रहे हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारियों का वहन करना अच्छी तरह से जानते हैं। भारतीय टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं, वो जानते हैं कि कैसी परिस्थिति में कैसी बल्लेबाजी करना। शॉर्ट पिच थी और बैकफुट पर जाकर पुल की करने की कोशिश की ऑन साइड में, लेकिन वाइड का इशारा कर दिया। ये लेग साइड के बाहर चली गई थी। थोड़ा धीमे आया जी ये गेंद, और उंगलियां भी फेरी थी स्टीफन ने। अगर तेज आता तो सूर्य ऐसी गेंद को छोड़ते नहीं है। ये शॉट तो बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलते हैं। अंपायर का इशारा वाइड की तरफ था। 11 रन आ चुके हैं जी पहली 4 गेंदों में। और सूर्य कुमार यादव ने उठाकर मारा, ऊंची चली गई कैच के रूप में, और उसी के साथ ये आउट। डीप कवर पर आकर इस बार बढ़िया कैच कर लिया, और ये सूर्य कुमार यादव का विकेट गिर गया। क्या इस मैच में फिर से रोमांचकारी तब्दीली आने वाली है? ये विकेट गिर गया, गेंद के पिच तक नहीं थे। ये बहुत बड़ी विकेट दिलाई है जी स्टीफन ने। धीमा डाला और ऑफ स्टंप के बाहर डाला, और अच्छा कैच भी पकड़ा प्रसाद ने वहां पे। सूर्य कुमार यादव को जाना पड़ेगा वापस। 4 बनाए मुंबई 144 पे 3। This is more than just a game. This is where passion meets precision. The stakes higher than ever. It's not just a league, it's a revolution. Featuring a unique 25-point format. Feel the speed, the power, and the adrenaline. Enjoy every moment on the court this season. From rising stars to tennis legends, everyone's on the court. Get ready for season 6 and witness the evolution of tennis. Watch the Tennis Premier League powered by Clear Premium Water. Live on Jio Cinema and Sports 18 from 3rd to 8th December. रनों की जरूरत है। सूर्य कुमार यादव अभी आउट होकर गए पवेलियन में, और उनकी जगह आए हैं। ये विकेट किस तरह से गिरा देखते हैं। देखिए मिड ऑफ ऊपर था, ये बात गेंदबाज भी जानता था, बल्लेबाज भी जानता था, लेकिन उसके बाद अपनी काबिलियत पे भरोसा रखा और ऑफ स्टंप के बाहर धीमा डाला। शिवम दुबे पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। T20 कैरियर में 14 अर्धशतक इनके नाम है, और इनके पाले में अगर गेंद आई ना बहुत दूर गेंद जाती है। इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, अगर ज्यादा रन मिलते हैं तो 12-12 रन मिल जाए, बहुत दूर फेंकते हैं जी गेंद को। लेकिन यहां पर दबाव है। तीसरा विकेट अभी गिर गया है मुंबई का। शिवम दुबे सामना कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया गेंद, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद करने की कोशिश की थी। ओवर की समाप्ति 12 ओवर्स के बाद 144 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही रोमांचकारी T20 क्रिकेट मैच यहां पर देखने को मिल रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 का जो आखिरी मैच है, यहां पर नॉकआउट में पहुंचने की जो कश्मकश है, जद्दोजहद, उसमें यह मुकाबला आंध्र प्रदेश और मुंबई के बीच में रोमांचकारी साबित हो रहा है। 230 का सामना करते हुए 144 रन बना लिए मुंबई ने, और सुदर्शन अब बॉलिंग के लिए आए हैं और वो बॉलिंग करेंगे रहाणे को, जबकि 86 रन जीतने के लिए बनाने हैं 48 गेंदों पर। रहाणे ने खेलने की कोशिश की ऑन साइड में, चकमा खा बैट से रखने के बाद पैड पर लगी। और देखिए पिछले 3 ओवर्स के अंदर वो जो 2 विकेट लिए ना, जो 2 बड़ी विकेट्स लिए हैं, पहले श्रेयस अय्यर को आउट किया, उसके बाद सूर्य कुमार यादव का वो विकेट। आंध्र प्रदेश के भी गेंदबाज वापस आते हुए इस गेम में, लेकिन उनके लिए अभी भी बहुत जरूरी है कि इस साझेदारी को तोड़ें। ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं
जिनके लिए रिक्वायर्ड रेट कुछ ज़्यादा नहीं है। ये शॉर्ट पिच और बैकफुट पर जाकर पुल किया, ऑन साइड में 1 ही रन बनेगा। टाइमिंग उतना अच्छा नहीं जमा पाए थे और अब तक जो गैप ढूंढ रहे थे, ये होता है दबाव जब पड़ता है ना तो खेल की दशा और दिशा बदलने लगती है। और जब आप विकेट ले लेते हैं तो बॉलर्स की चाल में उछाल आ जाता है, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि आ जाती है, उसकी गेंदों में तीखापन आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है अगर आंध्र प्रदेश की गेंदबाजों की तरफ देखेंगे ना, जिस तरीके से उन्होंने गति का परिवर्तन किया है वो बहुत सोच समझ के किया है। आप सूर्य कुमार यादव का विकेट देख लीजिए, उनके खिलाफ वो मिड ऑफ ऊपर लेके गेंदबाजी करना आसान नहीं है। मिड ऑफ भी ऊपर लिया, उसका धीमा डाला, लेकिन बल्ले से इतना दूर रखा कि वो संपर्क इतना अच्छा नहीं हो पाया। उससे पहले श्रेयस अय्यर भी जिस तरीके से आउट हुए थे वो भी बहुत तेज नहीं डाला गेंद। और इस बार खूबसूरती के साथ पुल कर दिया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन। शिवम दुबे ने आते ही अपने हाथ दिखाने शुरू किए, हालांकि ऊंची गेंद आई, शरीर पर ही आ गई थी, लेकिन पुल बहुत ही नियंत्रित ढंग से, कंट्रोल्ड पुल शॉट, 4 रन। और बहुत सारे गेंदबाज ये कोशिश करते हैं शुरुआत में शिवम दुबे के खिलाफ, लेकिन यहां पे बिल्कुल तैयार थे शिवम दुबे। दोस्तों कौन कौन मानता है कि सूर्य कुमार यादव से पहले दुबई को आना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्रिकेट के अंदर, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं पहले मैच में। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको खेल से जुड़ी, जिस तरीके से बल्लेबाजी करी थी मिलती रहेंगी और वो साझेदारी करी थी सूर्य कुमार यादव के साथ। प्लीज हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। बड़ा ही दिलचस्प मैच चल रहा है और आंध्र प्रदेश बार बार कोशिश कर रहा है कि इस मैच में फिर से लौटे। 2 विकेट अभी जिस तरह से लिए श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव के, उसने उनकी आशाओं को फिर से बढ़ा दिया, क्योंकि 45 गेंदों पर अभी भी 81 रन बनाने की जरूरत है मुंबई को। ये ड्राइव किया ऑफ साइड में और ये 4 रन। एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से दोनों फील्डर्स देखते रह गए और बिल्कुल दोनों को ऐसे बेध दिया, दोनों के बीच में जैसे निकली जैसे मक्खन में से छुरी निकलती है। 4 रन। मजा आ गया जी ये शॉट देख के, गेंद का इंतजार किया और देखिए आखिरी टाइम पे अपने लिए जगह भी बनाई थी, क्योंकि जानते थे वो कवर्स और मिड ऑफ के बीच में गैप कहाँ है। और कई बार होता है ना, ये पाँव अगर आप गेंद तक ले जाओ ना तो सीधा मिड ऑफ के पास मार देते हैं, वो गैप नहीं मिलता है। तो गैप ढूंढने के लिए थोड़ा सा अगले पाँव को खोलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल पाते हैं। पहली 4 गेंदों में 2 चौके आ गए। दोस्तों सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर ज़रूरी रोल निभाना था, लेकिन सूर्य कुमार यादव तो सूर्य की तरह सर्दियों में पस्त हो गए। जिस तरह से सूरज सर्दियों में दिखाई नहीं देता, वैसे ही सूर्य कुमार यादव भी ज़रूरत पड़ने पर आज नज़र नहीं आए और आउट होकर चले गए। शुभम दुबे आए हैं जो कि फ़िलहाल 9 रन पर खेल रहे हैं और इनसे काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सूर्य पस्त हो चुका है या सूर्य अभी अस्त हुआ है? एक स्क्वायर लेग है, एक लॉन्ग ऑन है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास, एक डीप मिड विकेट। ये ऑफ साइड में खेला, 1 रन लिया। ये बहुत ही बुद्धिमानी की बल्लेबाजी। ओवर की समाप्ति 13 ओवर्स के बाद 155 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में 11 रन बने। ये तीसरे 50 रन जो बने ना, वो 31 गेंदों में बने। इसका मतलब ये है कि रनों की रफ्तार में धीमापन जरूर आया। इसका मतलब ये भी है कि जब आप विकेट लेते हैं तो फिर रनों की रफ्तार को अंकुश में रखने में कामयाब हो जाते हैं। अब 42 गेंदों में 75 रनों की जरूरत है। स्टीफन बॉलिंग के लिए आए, 2 विकेट ले चुके हैं, वो बॉलिंग कर रहे हैं रहाणे को
और रहाणे ने ऑन साइड में खेला, लॉन्ग ऑन की तरफ, थोड़ी देर तक हवा में जरूर थी लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर से काफी आगे, 1 रन बनाने का मौका। मुझे लगता है अगर मुंबई को ये रन चेज करने हैं उसके लिए बहुत अहम रहने वाले हैं अजिंक्य रहाणे। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी है ना, और उनके सामने विकेट्स भी गिरे हैं ना, तो अपने खेलने का अंदाज नहीं बदला उन्होंने, और वो लगातार है ना हर ओवर में ना रिक्वायर्ड रन रेट से 1 कदम ऊपर ही रहे हैं, और दबाव आना ही नहीं दिया उन्होंने नए बल्लेबाजों के ऊपर। और शिवम दुबे ने स्लेज हैमर शॉट, ये तो हथौड़ा लगा जैसे। एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ दोनों को मालूम था कि हिलने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना बढ़िया टाइमिंग, 4 रन दुबे द्वारा, बहुत बढ़िया स्ट्रोक। टाइमिंग कितना खूबसूरत और ताकत भरपूर। और मेरी नजरें तो ना उनके हाथों के ऊपर है, वो कितने बढ़िया तरीके से वो हाथ चलाते हुए और पूरे बढ़िया तरीके से हाथ खोले। और जैसे कि आप कह रहे थे, कवर्स पे खिलाड़ी था, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी था, कोई जरूरत नहीं थी हिलने की। और ये खिलाड़ी डीप में भी होता ना कवर्स वाला, तो भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब शिवम दुबे के हाथ खुलते हैं ना, फिर वो फील्डर सिर्फ दर्शक बन के रह जाते हैं। और इस बार इलाके में आई तो लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। शिवम दुबे पूरे शबाब पर खेल रहे हैं। उनके इलाके में जैसे ही गेंद आई उन्होंने उठा दिया और दर्शकों को मजा आ गया। ये कितना बढ़िया स्ट्रोक। और वही बात है, एक बार फिर से सच होती हुई, यू मिस आई हिट। यहाँ यॉर्कर डालने की कोशिश थी, उन्होंने मिस किया और गेंद सीमा रेखा के पार। शिवम दुबे, इनके खिलाफ अगर आप वो लेंथ मिस करते ना, फिर बहुत मुश्किल काम हो जाता है भाई गेंदबाज के लिए। 15 चौके, 10 छक्के मुंबई की पारी में आते हुए। और देखिए पहली 3 गेंदों में फिर से 11 बनते हुए। वो ऐसा ओवर आए नहीं है, बेशक विकेट भी गिर जाए, कि यहाँ 10 से कम बने। एक विनय ने डाला था चौथा ओवर, जब अपने स्पेल का डाल रहे थे, जब बल्लेबाजों को शांत रखा था। दोबारा डालनी होगी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये होता है कि शिवम दुबे के ग्रोथ से बचने के लिए आप ऑफ स्टंप के इतनी ज्यादा बाहर चले जाते हैं तो फिर वाइड हो जाती है, ये जैसे ये वाइड हुई थी। हालांकि बल्ला तो चलाया था शिवम दुबे ने। 19 रन पर पहुंच गए शिवम दुबे, 6 गेंदों में 19 रन। रहाणे 44 गेंदों में 81 रन। अब 39 गेंदों में बनाने हैं जीत के लिए 63 रन। स्टीफन, ये फिर से ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, और फिर से वाइड। और जो फील्ड भी लगा रखी है ना, ऑफ स्टंप के बाहर ही डालना पड़ेगा उनको, क्योंकि फाइन लेग में भी खिलाड़ी अंदर है, स्क्वेयर लेग वाला खिलाड़ी भी अंदर, और ऑफ स्टंप के बाहर डालने के चक्कर में ना बहुत ज्यादा बाहर कर रहे हैं, बल्ले से दूर रखना चाहते हैं गेंद को। और रिक्वायर्ड दोस्तों आप यहाँ पर जाकर मैच देख सकते हैं। मेरी साइड पर कुछ 9.54 इंटरनेट इशू आ रहा है, मुझे लगता है मुश्किल होनी नहीं माफी चाहिए। चाहूंगा दोस्तों, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। आप अपना मैच यहाँ पर जो मैं लिंक दे रहा हूँ वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। मेरा थोड़ा इंटरनेट का, तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी ने जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मैंने आपको लिंक ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि इधर मेरे घर में इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा। दोस्तों मैंने आपको इंटरनेट का लिंक दे दिया है, आप जाकर कंटिन्यू कर सकते हैं मैच। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इंटरनेट का। जो लिंक मैंने दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप जाकर मैच देख सकते हैं। वो भी हमारा दूसरा चैनल है, दूसरा भाई कमेंट्री कर रहा है। यहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है मेरे भाई। बाउंड्री लाइन से आकर जो लिंक आपको दिया है कमेंट में, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं उधर। इधर लिंक का प्रॉब्लम चल रहा है नियंत्रित ढंग से, क्योंकि रहाणे जब तक मैदान पर है ना, वो पूरा नियंत्रण चाहिए। 15 रन आ चुके हैं, स्टीफन की आखिरी गेंद है।
कोशिश तो यही होगी कि वो आखिरी गेंद पे थोड़ा सा बल्लेबाजों को शांत रखा जाए। दोस्तों मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो हो चुका है, आप एक ही आएगा जाकर इस जी, लिंक आखिरी पर गेंद में भी। जाकर पूरा मैच देख मुंबई सकते हैं। 171 पे 3। प्लीज़ जाकर देखिए इस चैनल पर। India and Sports South Africa in the channel पर जाकर 90s मैच there, कंटिन्यू always करिए, a super please। hit affair. Every यहाँ single पर fast bowler in इंटरनेट my का प्रॉब्लम colony चल रहा है।